So, hello my dear students, let's continue our discussion on logarithm. In the last class, I have explained about the definition of logarithm, theorems on logarithm and some properties on logarithm. Till now, I have not discussed any examples related to the particular topic logarithm. Okay, so today I am going to discuss all the types of numericals. ठीक है? सो टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स का मतलब होगा कि एक ही मॉडल का सामने डिफरेंट मॉडल्स का मैं एग्जांपल दूंगा. ठीक है. सो डिफरेंट मॉडल्स का एग्जांपल देने से जितना प्रॉपर्टीज में कल एक्सप्लेन किया या थ्योरम्स एक्सप्लेन किया वो सब को यूज कैसे करना है, कहां पे यूज करना है, वो सब यहां से क्लियर हो जाएगा. ठीक है. सो हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है. क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड जितना करोगे तो उतना ही और डिफिकल्ट होता जाएगा सम्स. ठीक है. सो सिंपलेस्ट वे यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन. ये हम हमेशा दिमाग में रखना है. कभी भी एक इजी सम को कॉम्प्लिकेटेड वे में सॉल्व मत करो. ठीक है. सो थिंक अबाउट द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड द सॉल्यूशन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग. इवैल्यूएट द फॉलोइंग. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ these three terms. The first one is log of 324 base 3 root 2. Listen carefully. You have to evaluate the following term means you have to find the value of this expression. Okay? You have to find the value of this expression. ऐसा मैं 3 example लिखा. So the first one is logarithm of 324 to the base 3 root 2. How to find the value of this logarithmic expression? एक बात याद रखना पड़ेगा. To solve such type of question, to solve or to find the value of such type of expression, try to express the given logarithmic form into exponential form. मैं कल भी बताया था कि exponential to logarithm, logarithm to exponential. If you know this conversion formula, बस logarithm का टॉपिक समझ में आ जाएगा और कुछ नहीं चाहिए. ठीक है. So in order to find the value of such type of expression, what kind of expression this one? Logarithmic expression. Because जहां पे log है वो तो logarithmic expression ही हुआ ना. So to find the value of such kind of expression, first of all, the first step is express the given expression in the form of exponential form. Exponential form में पहले express करना है. So exponential form क्या दिया था मैं कल? a to the power x equal to b. This is exponential form where b is a positive number, a is also a positive number other than 1. And x is the unknown quantity. This x is called exponent here. This is exponential form. Yes, I have written short one, exponential form. And what is the logarithmic form? ये exponential form का logarithmic form क्या होता है? To calculate this x, we can write x equal to logarithm of b with respect to base a. This is logarithmic form. Yes or not? Side में मैं लिख के दिया. तो फिर सॉल्व करने के टाइम में आसान हो जाएगा. ओके. बिकॉज दिस आर द फर्स्ट क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं साइड में एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म लिख के रखा. ठीक है. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन 1a का सॉल्यूशन क्या बोला था? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, द फर्स्ट स्टेप इज लेट द गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, लेट द गिवन एक्सप्रेशन is equal to x. मीन्स मैं क्यों x ले रहा हूं? क्योंकि मैं अभी इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूंगा. ओके. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन यू हैव टू कन्वर्ट द एक्सप्रेशन इन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो दैट्स व्हाई आई एम कंसिडरिंग द गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू x. So now convert this one is in exponential form. If x equal to log of b base a, then it can be written as a to the power x equal to b. So a to the power x equal to b means here a is 3 root 2 to the power x, which is equal to 324. Okay. अच्छा, अभी बात क्या है कि
हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, yes or not? I have considered the whole expression is equal to x, which means you have to find the value of x only. तो यहां से x का वैल्यू कैसे मिलेगा? Now it is in exponential form. You can check the exponential form. The standard exponential form is a to the power x equal to b, and this one is also in the form of a to the power x equal to b. Now the thing is that how can we find the value of x? ये x कहां पे है? Whether the x is in the base or is in the exponent, पावर में है या बेस में है? पावर में है x, तो x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है? Listen carefully. To find the value of x, listen carefully. Once again I'm telling, to find the value of x, the right hand side number is to be factorized, according to its base. Okay? To find the value of x, the right hand side number is to be factorized according to its base, according to the base of the left hand side. Okay, according to the base of the left hand side. क्या बोला मैं? To find the value of x, the right hand side number is to be factorized according to the base of the left hand side part. So left hand side में base क्या है? 3√2. So ये 3√2 के हिसाब से ही 324 को फैक्टराइज करना है, ठीक है? So 324 can be written as 3 to the power 4 into 2 square, because 3 to the power 4 81 into 4 is 324. क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 3 और 2 ही है, forget about this √2, forget about the root over sign. 3 और 2 है, so 3 और 2 को देख के ही मैं 324 को फैक्टराइज किया. It can be written as 3 to the power 4 into 2 square. Now 3 to the power 4 into 2 square, ये 2 square को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, that is √2 whole thing to the power 4. Same meaning only. √2 whole thing to the power 4 is equivalent to 2 square only. But the question is why I have written √2 to the power 4? Because मैं क्या बोला था? The right hand side number is to be factorized according to the base of the left hand side. लेकिन left hand side में base क्या है? √2 है ना? तो √2 तो लाना पड़ेगा right hand side में, ठीक है? So that's why I have written here √2 to the power 4. And √2 to the power 4, it can be written as 3 into √2 whole thing to the power 4 also. What about left hand side? 3 into √2 whole thing to the power x. Now 3√2 whole thing to the power x is equal to 3√2 whole thing to the power 4. Therefore x equal to 4. So the value of this expression is 4. So in this way you have to solve this type of question. Okay, the value of 3√2 whole thing to the power x is equal to 3√2 to the power 4 means x equal to 4. Okay, यहाँ पे क्या किया मैं? पहले लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद राइट हैंड साइड का जो नंबर होगा उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द बेस ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? देन ओनली विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. क्लियर? सो एक क्वेश्चन नहीं, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन अनदर 2 क्वेश्चन, सो आई विल डिस्कस दोस 2 क्वेश्चंस आल्सो, तो फिर और जल्दी क्लियर हो जाएगा. नाउ द सेकंड वन, if we look at the second question, number B, log of 1/16 with respect to base 4. Same procedure. Let the whole expression, this is equal to x. You have to find x. Yes. So to find x, express the given logarithmic expression into exponential form. So it can be written as what? 4 to the power x is equal to 1/16. Yes. Now what you have to do? You have to arrange or you have to factorize the right hand side according to the base of the left hand side. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बेस क्या है? 4 है. तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर बेस 4 है तो 1/16 को तो मैं 16 to the power -1 भी लिख सकता हूँ, and it can be written as 4 to the power -2 also, right? So 4 to the power x is equal to 4 to the power -2, because we all know 4 square is 16. Yes. So therefore x is equal to -2. Okay, so the value of the second expression, that is log 1/16 with respect to base 4, is -2. Is it clear? Now the third one. These are the different models actually. Now the third one is
log of 0.008 with respect to base 5, root 5. Let us consider the whole expression is equal to x. Same procedure, express the given expression in logarithmic in exponential form, that is root 5 whole thing to the power x. This is equal to 0.008. Okay, so 0.008 है left and right hand side में, और left hand side में है root 5. So first of all you remove the decimal. It can be written as then 8 by 1000, that is 1 by 125. Yes, and 1 by 125 can be written as 5 to the power minus 3. Yes, because 5 cube is 125, but here 1 by 125 is there, so it will be then 5 to the power minus 3. So root 5 whole thing to the power x is equal to 5 to the power minus 3. अरेंज तो नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि बेस दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए. तो लेफ्ट हैंड साइड में बेस में है रूट 5, whereas in right hand side it is 5 only. Then root 5 can be written as 5 to the power half, yes or not? So 5 to the power half whole thing to the power x, this is equal to 5 to the power minus 3. That is 5 to the power x by 2, which is equal to 5 to the power minus 3. Therefore, x by 2 is equal to minus 3, or x is equal to minus 6. So this is the solution. थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन है x इक्वल टू माइनस 6. ठीक है, सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो ये हो गया एक मॉडल. एक मॉडल में मैं 3 क्वेश्चन दिया. ठीक है, एक क्वेश्चन देने से मे भी क्लियर नहीं हो सकता, इसलिए मैं 3 क्वेश्चन दिया. दिस इज वन मॉडल. हाउ टू इवेलुएट लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन. तो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप क्या है? एक्सप्रेस द गिवन लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल एंड देन फैक्टराइज द राइट हैंड साइड नंबर अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, एंड देन ओनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट वन. नाउ द सेकेंड मॉडल आई विल एक्सप्लेन. नाउ सेकेंड मॉडल में क्या बोला गया है? फाइंड द बेस. अभी बेस फाइंड आउट करना है. लास्ट क्वेश्चन में बताया गया था कि ये पूरा लॉगरिथमिक फॉर्म का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें बेस भी दिया हुआ था. बट हियर द बेस इज नॉट गिवन, यू हैव टू फाइंड द बेस. सो फाइंड द बेस इफ लॉगरिथम ऑफ 144 इज 4. द फर्स्ट क्वेश्चन solution. Find the base. Let base be small letter a. Let us consider base be small letter a. Generally small letter a से consider करते हैं according to the definition also. Okay, so let base be small letter a. But here the thing is that one statement is given. Logarithm of 144 is 4. So you have to write the mathematical form of the statement. Since you have to find base, so let us consider the base be a. If the logarithm of 144 is 4, ये स्टेटमेंट को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? यू हैव टू एक्सप्रेस इन मैथमेटिकल फॉर्म. ओके, देखो कैसे एक्सप्रेस करना है. लॉगरिथम ऑफ 144, दैट इज लॉग ऑफ 144 टू द बेस a. दिस इज इक्वल टू 4. इट इज गिवन. ओके, logarithm of 144 is 4, means log of 144 to the base a, which is unknown, is equal to 4. okay, तो अल्टीमेटली जाके सेम एक्सप्रेशन ही हुआ ना. सो सेम एक्सप्रेशन है तो सेम प्रोसीड्यूर अप्लाई करना है, राइट? सो एक्सप्रेस दिस लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो a to the power 4 is equal to, we can write 144. yes, a to the power 4 is equal to, we can write 144. Now here what you have to do? You have to find the value of a. तो a तो यहाँ पे बेस में है, और लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसमें तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना था जो कि एक्सपोनेंट में था. तो यहाँ पे बेस में है, तो बेस में है तो क्या करना है? यहाँ पे भी लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करना पड़ेगा. सो हियर व्हाट यू हैव टू डू? द exponent of right hand side. Listen carefully. To find the value of a, what you have to do? The exponent of right hand side must be made equal to that of the left hand side. Okay, once again I am repeating.
to find the value of a, the exponent of right hand side, the exponent of right hand side must be made equal to that of the left hand side. मतलब राइट हैंड साइड में जो नंबर है इसको फैक्टराइज करने के बाद जो एक्सपोनेंट मिलेगा वो एक्सपोनेंट और लेफ्ट हैंड साइड का एक्सपोनेंट इक्वल होना चाहिए. देन ओनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए. ओके, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, द एक्सपोनेंट ऑफ राइट हैंड साइड मस्ट बी मेड इक्वल टू दैट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड. तो 144 को फैक्टराइज करने से इसका एक्सपोनेंट मिलेगा. सो लेट अस चेक 144 को कैसे फैक्टराइज किया जाता है. यहां पे एक्सपोनेंट क्या है 4, मतलब यहां पे भी पावर में 4 आना चाहिए 144 को जब फैक्टराइज करेंगे. सो वी नो द वैल्यू ऑफ 2 to the power 4 is 16. Yes, the value of 2 to the power 4 is 16 and 3 square is 9, and we know that 16 into 9 is 144. 16 into 9 is 144. So यहाँ पे 2 का पावर 4 मिला और लेफ्ट हैंड साइड में भी a का पावर 4 है, लेकिन यहाँ पे 3 का पावर तो 2 है. You have to make equal ना. So 3 का पावर भी 4 होना चाहिए. So it can be written as 2 to the power 4 into root over 3 whole thing to the power 4. That is 2 root 3 whole thing to the power 4 also we can write, which implies a to the power 4 is equal to 2 root 3 whole thing to the power 4. So अभी हो गया एक्सपोनेंट इक्वल. Therefore the value of a is 2 root 3. So this is the base. Okay, यही है बेस का वैल्यू. Is it clear? Let us consider the base is equal to a and then write in mathematical form. जो एक स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने से पता चलेगा कि वो लॉगरिथमिक फॉर्म में है या ऑफ कोर्स इट इज इन लॉगरिथमिक फॉर्म. देखने से यहाँ पे देखने से पता चलता है कि लॉगरिथम ऑफ 144 दिया गया है, मींस log of 144 is 4. Then express it in the form of exponential and then factorize it to get the value of base, that is a. ठीक है. One more question is there, that is same model का और एक क्वेश्चन है. Logarithm of 49 is 6. Logarithm of 49 is 6. Here also you have to find the base only. So let the base be a. Now logarithm of 49 to the base a is equal to 6. ये दिया गया है. So it can be written as a to the power 6 is equal to 49. हमेशा लॉगरिथम फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन है तो लॉगरिथम में एक्सप्रेस करो, यू विल गेट द आंसर. कुछ भी होगा तो लॉगरिथमिक टर्म, यू विल गेट द आंसर. ठीक है. नाउ हियर आल्सो यू हैव टू फैक्टराइज दिस नंबर, राइट हैंड साइड नंबर, एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, व्हाट यू हैव टू डू, the right hand side, the exponent of right hand side must be made equal to that of the left hand side. तो लेकिन 49 can be written as 7 square, we all know. तो फिर एक्सपोनेंट कहाँ सेम हुआ? सेम तो नहीं हुआ. तो इसको कैसे सेम किया जाएगा? देखो 7 स्क्वायर है. 7 स्क्वायर can I write it as 7 to the power 1 by 3 whole thing to the power 6? Because anyhow एक्सपोनेंट को सेम बनाना है ना, बोथ साइड में एक्सपोनेंट को सेम बनाना है. सो 7 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 7 टू दी पावर 1 by 3 होल थिंग टू दी पावर 6, बिकॉज 3 और 6 को अगर कैंसिल किया जाएगा तो यू विल गेट 2 ओनली, राइट. सो a टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 7 टू दी पावर 1 by 3 होल थिंग टू दी पावर 6. ऐसे सोचना है, ठीक है. डोंट एक्सपेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन. देखो यहाँ पे 7 स्क्वायर था, इसमें a टू दी पावर 6 था. कैसे ब्रेक करना है, कैसे क्या करना है, ये सब कुछ टोटली प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर प्रैक्टिस ठीक से करोगे तो आइडिया तो मिलेगा ही. ठीक है. अगर प्रैक्टिस ठीक से करोगे तो आइडिया मिलेगा कैसे 7 स्क्वायर को 7 टू द पावर 6 फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है. सो इन दिस वे यू कैन एक्सप्रेस, दिस इज इक्विवेलेंट ओनली. 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टू द पावर 1 by 3 होल थिंग टू द पावर 6, राइट. सो अगर अभी एक्सपोनेंट सेम हो गया तो इसका मतलब देन वी कैन राइट a इक्वल टू 7 टू द पावर 1 by 3, और इट कैन बी रिटन एज क्यूब रूट ऑफ 7 ऑल्सो. सो दिस इज द बेस ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन. ओके, फाइंड द बेस इफ लॉगरिथम ऑफ 49 is 6. So here the base is cube root of 7. Okay, so these are the two models. दो डिफरेंट मॉडल का सम एक्सप्लेन किया. फर्स्ट क्वेश्चन में था क्या, पूरा लॉगरिथमिक फॉर्म का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है एक लॉगरिथमिक फॉर्म का बेस कैसे फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो
few models are there. I will explain now. So next question number 3. This is another model. ठीक है, this is third question और तीन मॉडल का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं. ठीक है, थर्ड वन इज इवेलुएट log base 2 ब्रैकेट log root 2 अगेन ब्रैकेट log 81 base 3. ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है. दिस इज सिंगल एक्सप्रेशन. ओके, रिमेंबर दिस वन, दिस इज अ सिंगल एक्सप्रेशन. ये पूरा सिंगल एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करना है. अभी तक जितना जो क्वेश्चंस मॉडल डिस्कस किया ऐसा वैल्यू था. log 81 बेस 3 को कैसे इवेल्युएट किया, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस. बट अभी ऐसा अगर एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो एक ही एक्सप्रेशन में तीन लॉग है. log बेस 2, log base root 2 and then log 81 base 3. How to evaluate? How can we find the value of such type of expression? सुन लो पहले क्या करना है. अगर एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा लॉगरिथमिक टर्म रहेगा तो then what you have to do? You have to factorize each number. Listen carefully. In this type of problems, you have to factorize each number. Now here number is which one? Number means 81. This is called number. These are base only. 2, root 2, 3. These are base. But मैं बोल रहा हूं नंबर के बारे में, तो नंबर मतलब 81 होगा यहाँ पे, बिकॉज बाकी दो टर्म में नंबर नहीं है. Yes or not? So in this type of problem, each number is to be factorized according to its base. ठीक है? To evaluate such type of expression, each number is to be factorized according to its base. ठीक है? Now once you check in this expression how many numbers are there? Only one, that is 81. तो मतलब 81 से शुरू करना है. Okay? The thing is that you have to reduce the logarithmic term one by one. जितना मतलब रिड्यूस करने से ही वो एक्सप्रेशन का वैल्यू निकलेगा. ठीक है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, राइट. सो हम लोगों का एम क्या होगा? टू रिड्यूस द लॉगरिथमिक टर्म वन बाय वन. ठीक है, इसके लिए ही क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फैक्टराइज द नंबर अकॉर्डिंग टू इट्स बेस. तो देखो सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का. log base 2 स्क्वायर ब्रैकेट log base root 2 देन ब्रैकेट log 81 है, बेस में 3 है. कैसे इसको फैक्टराइज किया जाता है? देखो, बेस में जो है बेस को देख के नंबर को फैक्टराइज करना है. ठीक है, तो बेस में 3 है तो नंबर को भी ऐसे फैक्टराइज करो सो दैट यू विल गेट 3 to the power समथिंग. अगर बेस में 9 होता तो डायरेक्ट वी कैन से दैट 81 कैन बी रिटन एज 9 स्क्वायर. बट बेस में तो 9 नहीं है, बेस में 3 है. सो इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू हैव टू फैक्टराइज द नंबर अकॉर्डिंग टू इट्स बेस. बेस में 3 है तो you have to factorize 81 according to its base only. So 81 can be written as 3 to the power 4. Yes, 3 to the power 4 is 81. So log base 2, log base root 2. Then one theorem I have given yesterday. ये 4 जो है 4 आगे आ जाता है ना. So 4 into log 3 base 3 we can write. Yes, that is log base 2 log base root 2. Logarithm of a number, listen carefully, logarithm of a number with respect to same base is always equal to 1. In the last class I have discussed about the properties of logarithm. Logarithm of a number with respect to the same base is always equal to 1. 1 into 4, that is 4 only. 4 only. तो देखो पहले क्वेश्चन में दिया गया था 3 लॉगरिथमिक टर्म, अभी रिड्यूस होके 2 हो गया. सो लाइक दिस यू हैव टू रिड्यूस 1 by 1, देन ओनली विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक है, सो log base 2. अभी क्या करना है? इसको फिर रिड्यूस करना है. कैसे? सेम प्रोसीड्यूर, फैक्टराइज द नंबर अकॉर्डिंग टू इट्स बेस. सो वी नो दैट 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर, बट बेस में तो √2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बेस में √2 है तो क्या हुआ? Then 4 can be written as √2 to the power 4 also ना.
वी ऑल नो दैट 2 स्क्वायर इज 4, लेकिन 2 स्क्वायर लिख के कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज बेस में तो √2 है। तो फैक्टोराइज नंबर को जब फैक्टराइज करना है बेस के हिसाब से ही तो फैक्टराइज करना है। सो √2 टू द पावर 4 इज इक्विवेलेंट टू 2 स्क्वायर ओनली, ठीक है ना। √2 टू द पावर 4, √2 टू द पावर 4 को अगर मैं ब्रेक करूं तो 2 टू द पावर हाफ होल थिंग टू द पावर 4 होगा, तो कैंसिल जाने से तो 2 स्क्वायर ही मिलेगा एंड 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 ही तो होगा। यू हैव टू अरेंज इन सच ए वे दैट बेस और नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है, देन ओनली इट विल रिड्यूस। अगेन 4 को आगे लेके आओ, दैट इज log base 2 4 into log √2 base √2. Same theorem, same property, logarithm of a number with respect to same base is always equal to 1. 1 into 4 that is 4 only. So मैं यहां पे लिख रहा हूं, स्पेस नहीं है, so log 4 base 2. Now again 4 can be written as 2 square, log 2 square base 2. ये 2 को आगे लेके आना है, that is 2 into log 2 base 2, and the value of log 2 base 2 is 1, so answer is 2. So the value of this expression is 2 only. Okay, so this is the solution. Is it clear? Okay, next सेम प्रोसीड्यूर का है, सेम मॉडल का क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूं सो दैट और जल्दी थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम प्रोसीड्यूर। यहां पे क्या करना है कि सब लॉगरिथमिक टर्म के साथ नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सबको ब्रेक करना पड़ेगा, सबको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। सेम प्रोसीड्यूर ओनली, सिंस ऑल द लॉगरिथमिक टर्म कंटेन्स नंबर, सो यू हैव टू फैक्टराइज ऑल द नंबर्स, ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस। सो 4 है यहां पे, लेकिन 4 और 32 इसको तो फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है, तो क्या करना है कि 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, देन 32 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 5 ऑल्सो। देखो बेस और नंबर को सेम करना है ना, सो 4 को मैं 2 स्क्वायर लिखा और 32 को 2 टू द पावर 5 लिखा, इनटू सेकेंड वन, हियर इट इज गिवन log 4 बेस 16, तो 4 को 4 रखने से भी प्रॉब्लम नहीं है, 16 कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर। अभी बेस को ब्रेक करना पड़ रहा है, देख प्रोसीड्यूर सेम ओनली, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों को प्रोसीड करना है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से कभी कभी नंबर को फैक्टराइज करना पड़ सकता है, कभी कभी बेस को फैक्टराइज करना पड़ सकता है, कभी कभी नंबर और बेस दोनों को फैक्टराइज करना पड़ सकता है, इट डिपेंड्स। ओके, एंड द थर्ड वन इज नंबर विल रिमेन सेम। 64 को मतलब जो बेस है इसको फैक्टराइज करो, कैसे करना है, 64 को हम लोग 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, दैट्स इट। ओके, नाउ ये जो 5 है, 5 तो आगे आ जाएगा, लेकिन बेस में से लास्ट क्लास में मैं डिस्कस किया था, नंबर से एक्सपोनेंट आगे आने से नॉर्मल नंबर ही रहता है, लेकिन अगर बेस का एक्सपोनेंट आगे आता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। बेस का एक्सपोनेंट को आगे तो लेके आना ही है, तो बेस का एक्सपोनेंट को जब आगे लेके आना है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अभी यहाँ पे बेस का एक्सपोनेंट में क्या है, 2, सो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2। सो 1/2 इंटू 5 कैन बी रिटन एज 5/2 log 2 base 2 इंटू, यहां पे नंबर जैसा है ऐसा ही रखना है, बेस का एक्सपोनेंट को आगे लेके आना है, सो दैट नंबर एंड बेस रिमेन सेम रखना पड़ेगा। एक बात याद रखना है, ऐसा एक्सप्रेशन में ना सब लॉगरिथमिक टर्म को रिमूव करना है, सब लॉगरिथमिक टर्म को रिमूव करना है, देन ओनली यू विल गेट द सॉल्यूशन। तो वही मैं कर रहा हूं, ठीक है। नंबर और बेस को सेम रखने से ही तो 1 हो जाएगा, बिकॉज वी नो देयर इज वन प्रॉपर्टी, लॉगरिथम ऑफ ए नंबर विथ रेस्पेक्ट टू द सेम बेस इज ऑलवेज 1, ठीक है। तो फिर यहां पे सिर्फ एक्सपोनेंट, बेस का एक्सपोनेंट को आगे लेके आना है, सो देन इट विल बी 1/2, बिकॉज बेस का एक्सपोनेंट रेसिप्रोकल हो जाता है, so 1/2 into log 4 base 4 into, what about the third one, from the base only you have to bring this exponent, तो ये यहाँ पे 2 to the power 6 है, तो 6 can be written as 1/6 log 2 base 2. Okay, you have to remove all the logarithmic term to find the solution. So log 2 base 2, 1 into 5/2 is 5/2. Log 4 base 4 is 1 into 1/2 is 1/2 into log 2 base 2 is 1 into 1/6 is 1/6. So this will be then 5/24. This is the solution, ठीक है। So this is another model,
थर्ड क्वेश्चन है। तो अभी तक मैं तीन मॉडल डिस्कस किया। सो ऐसा एक्सप्रेशन रहने से ट्राई टू रिमूव और ट्राई टू रिड्यूस द लॉगरिथमिक टर्म। अगर एक ही टर्म में नंबर होगा तो प्रोसीड फ्रॉम दैट वे। यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में एक ही टर्म में नंबर था तो वही टर्म से शुरू करना है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में सब टर्म के साथ नंबर है, सब लॉगरिथमिक टर्म के साथ नंबर है, तो सबको फैक्टराइज करना है। कभी कभी सिर्फ नंबर को फैक्टराइज करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स बेस, कभी कभी बेस को फैक्टराइज करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर, अदरवाइज कभी कभी क्या होता है नंबर और बेस दोनों को फैक्टराइज करना पड़ सकता है। सो इट डिपेंड्स, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सम मॉडल्स आर देयर, अगेन आई विल डिस्कस।